And looking very, very pretty, huh? Thank you. Okay, so ma'am, how are you? How's everything? You're shooting stuff. You're so busy. I can say that. Yeah. Oh yes. Between and like I told you, मैंने 2-3 लोगों को बोला हुआ है कि मैं live आऊंगी and I mistake all the posters and plus with shoot and with my ad I was doing an. Did I send you the pictures? मैंने आपको Oh God, that day was crazy. It was crazy. Your number was very similar to the costume stylist, and I was, kind of deciding my costumes. And the best was when you told me, yeah, I like the Kilon wala dress. And I'm like, okay, can you please finalize? And then you told me, ma'am, I don't wear it. It was so funny. I was like, that means I was so tired that I didn't know मैंने किसको photos भेजे क्या. It was such a crazy day. I was thinking, why is she sending me these? मैंने कहा यार ये क्या मतलब? मैं कहा okay, मैं कहा ये इतनी मैम इतनी ज़्यादा थक चुकी हैं कि इनको पता नहीं किसको जा रहा है ये. हाँ सच में, because that day was crazy. The production guys calling me, the costume calling me, the stylist calling me, the director wanting to speak to me because पहले क्या होता था, एक meeting होती थी before the ad. So I was getting ready for this campaign I was doing for Bharat Matrimony. तो पहले क्या होता था कि 2 दिन पहले एक डायरेक्टर से मीटिंग होती है जहाँ आपकी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी होती है, सब कुछ होता है. Now because of this new normal, everything is over the phone, and it was crazy. It was crazy. First of all, welcome you here. So I'm really happy to see you here. Seriously. I'm happy to be a part of this. I think this is going to be my stress buster today. So yeah. I'm going to love this. Okay, so how's the normal new? अब कैसा चल रहा है सब कुछ शूटिंग में? Honestly, कई बार मैं भूल जाती हूँ कि कोरोना है और हमारे आसपास के लोग भी भूल जाते हैं कि कोरोना है. Of course, that doesn't mean कि हम अपने guards, you kind of let your guards down. But the only thing is that you, जिस डर के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो कई बार वो जो काम का हाई होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप भूल जाते हो कि you're in corona times and कई बार मुझे लगता है कि we are back to old times, and then you remember कि no, this is the new normal. You can't sit on this chair has to be sanitized. Of course we all have our names on our chairs वहाँ पे set पे, but it's very important कि आप एक सेकंड के लिए भी ये बात भूले ना कि आप कोरोना टाइम्स में काम कर रहे हैं. तो वो एक एडेड स्ट्रेस होता है काइंड ऑफ सेट पे, क्योंकि पहले कैसे हम कहीं भी बैठ जाते थे, कुछ भी कर लेते थे. अब मैं टेबल टच करती हूँ तो पहले वो टेबल सैनिटाइज होता है, हमारी मूवमेंट पहले देखते हैं वो, अच्छा मैम आप टेबल पे हाथ रखेंगी कि नहीं, आप ये लैपटॉप उठाएंगी कि नहीं. तो हर चीज इतनी मापी तौली होती है आपके मूवमेंट्स की, उसके पहले उन लोगों को उस चीज को सैनिटाइज करना होता है तब. So it's an added pressure and quite a big pressure. And मैम ये भी तो है ना कि हमें घर से निकलने से पहले बहुत सारी चीजें कैरी करनी है. हमें मास्क कैरी करना है, ग्लव्स कैरी करने हैं, सैनिटाइजर लेना है, फिर अलग से एक टॉवल लेना है हाथ मुंह धोने के लिए. बहुत सारी चीजें हमको ऐसा लग रहा है. बहुत सारी. Plus I carry my own sheet, I carry my own pillow, I carry my own everything. खाना तो खैर I was always carrying my own food, but ये इसके साथ साथ sheets, pillows, everything I carried from home. तो ऐसे रोज लगता है जैसे मैं किसी यात्रा पे जा रही हूँ, ये सारे बैग वगैरह लेके. But that's the new way to be probably. Do you miss your lockdown period? Actually, lockdown period में भी मैं काम कर रही थी throughout. Okay. Yes, I did 3 lockdown films, जिसमें से एक तो has won a lot of awards also with Pine Tree Films. मैंने एक वो की, प्लस मैंने 2 और फिल्म्स की.
तो one was featured in ABP and एक तो उनके साथ भी जियो फिल्म्स के साथ. तो plus I was doing a lot of motivational videos. I was doing I did an ad from home. Then काफी कुछ टचवुड किया घर से. तो प्लस क्या था, क्योंकि मेरे पास हेल्प नहीं था, तो वो भी एक एडेड वो था. सो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली. अनलाइक व्हाट पीपल से कि हमारे पास काम नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था टाइम कैसे पास करें नेटफ्लिक्स. मुझे टाइम ही नहीं मिलता था. Okay, that's really good. Yes. Okay, so ma'am, I really want to ask that we all know that you did Rasbari. Okay, अभी recently आपकी Rasbari वेब सीरीज जो कि बहुत ही कमाल थी, मतलब सच में मैं खुले में बोलती हूँ कि मुझे तो बहुत पसंद है, and I love that Pushpa character in that. Seriously, but ma'am, we don't know that how your journey started. मतलब you started all these things and the acting you did, the way you start your character. मतलब मेरे को ना आपका एक कैरेक्टर याद नहीं है, मेरे को ना आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स याद है. So I just really want to know about your journey because I don't believe on Wikipedia because हमेशा गलत information मुझे celebrities की मिलती है. बहुत सारे. अरे उसमें तो लिखा हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है. वो किसी और नीलू कोहली के बारे में लिखा हुआ है. मैंने उनको लिखा भी है कि मतलब बिफोर यू नो मेरा और किसी और नीलू कोहली का उन्होंने मर्ज किया हुआ है, यू नो. तो मैंने माय फ्रेंड से देख तेरे बारे में क्या लिखा हुआ है विकिपीडिया. Shit. Okay, I didn't know that. हाँ. So you know उसमें क्या होता है, there is आप मेरे बारे में लिखा है, मेरे बाद किसी और नीलू कोहली के बारे में लिखा होगा या कोहली के मिसेस कोहली के बारे में. I'm not too sure, but I think her case was under sub judice or whatever. So उसमें लिखा है कि crazy है. तो actually मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, you can say I started जब से मैंने होश संभाला है, मैंने थिएटर किया है. मैं देहरादून की हूँ, देहरादून की थी, और देहरादून में मेरे कजिन्स और मेरे अंकल्स वगैरह, आई वाज स्टेइंग देयर, एंड मेरे घर में ही थिएटर होता था. I belong to this group. My uncle belongs to this group called Jagriti, which was just not a theater group. It was a movement, you know. Jagriti means, you know, awareness. So awareness was all about. There was women empowerment. There was the Dahej Pratha ke against. So there was you know, I have been with those kind of people right from my beginning. तो कहीं ना कहीं वो जो सीड्स ऑफ क्या उसको कहते हैं एक्टिंग, वही शुरुआत हुई थी. सो स्कूल में आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, बट बाय द टाइम आई केम इनटू सीनियर स्कूल आई बिकेम एक्टिव इन थिएटर देयर आल्सो. बट माय एक्चुअल लाइफ इन काइंड ऑफ थिएटर पिक्ड अप इन कॉलेज. I was very active there. And then after that मेरी शादी हो गई और काफी साल के लिए वो सब बंद हो गया. And then it revived again, and I started doing ads in the year 1999. So that's 21 years from now. और 1-1.5 साल तक 2 साल तक मैंने सिर्फ एड्स किए, क्योंकि I used to look down upon TV. मुझे लगता था टीवी इज. लेकिन एक बार जब मैंने टीवी शुरू किया, उसके बाद सिर्फ टीवी किया काफी साल. और एक्चुअली आई हैव टीवी टू थैंक फॉर गिविंग मी द पहचान, जो एक पहचान. शायद बहुत लोग मुझे मेरे नाम से ना जानते हो, बिकॉज टीवी इज वन प्लेस जहाँ यू नो आपको अपने कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं. लेकिन मुझे एक पहचान मिली, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, और वो पहचान मुझे अपने तकरीबन पहले शो से मिल चुकी थी, जो कि भाभी था, जो 7 साल चला. So I actually basically owe my success to this serial called Bhabhi. And then by God's grace, I never looked back. One thing led to the other, and that's how it all started.
एक्चुअली आई रियली पॉइंट आउट दिस थिंग इन यू, स्पेशली इन यू। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई या तो कोई विलेन होता है या फिर कोई भी कैरेक्टर होता है या फिर मदर का कैरेक्टर होता है, तो मैम वो ना वो कैरेक्टर कभी भूलते नहीं है हम। जैसे अब कोकिलाबेन हमने गोपी बहू वाला नाटक जो था, अगर कोकिलाबेन किसी और सीरियल में आएंगी तो हम उनको भूलेंगे नहीं, बिकॉज शी वाज देयर। बट यू क्रिएटेड अ न्यू इमेज, हमेशा आपने हमेशा हर बार एक नई इमेज बनाई है। So that's the special Yes. part in you. I always, this is what you're taught in theater, to live that character. Yeah, exactly. So even like when Rasbhari was being made, I was shooting for this serial called Namkaran. I was shooting for this film called Manmarziyan. और मनमर्जियां खत्म हुई और मैंने रसभरी की शूटिंग शुरू की। मनमर्जियां ended in on April 5th, and April 25th I started shooting for रसभरी। और मैंने उनकी कोई रिहर्सल्स अटेंड नहीं की थी, कोई वर्कशॉप नहीं अटेंड की थी, मैं डायरेक्टर से नहीं मिली थी, मैं किसी से नहीं मिली थी, क्योंकि आई वॉज अ लास्ट मिनट एंट्री। पहले आई थिंक कोई और कर रहा था और मैं लास्ट मिनट एंट्री थी। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई वॉज गेटिंग इनटू। तो और मेरे पास, क्योंकि मैं आई वॉज शफलिंग बिटवीन अमृतसर एंड मुंबई, आई हैड नो टाइम टू रीड द स्क्रिप्ट दे सेंट। तो वो जब मुझे कहते थे मैम आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं कहती थी बस आज पढ़ रही हूँ, कल पढ़ी, और मैंने नहीं पढ़ी थी स्क्रिप्ट। और उसी में मैंने ये शो साइन कर लिया, सिर्फ अपना पोर्शन, अपना कैरेक्टर स्केच। शायद इतनी कम प्रिपरेशन मैंने किसी की नहीं की है। आई ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई कैरेक्टर्स, बट देयर वाज नो टाइम, देयर वाज जस्ट नो टाइम, बिकॉज दे वर ऑलरेडी शूटिंग। तो आई थिंक मैं 5th या 6th को वापस आई। बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, आई वाज ऑलरेडी इनटू। मैंने एक काम किया, आई टोल्ड माय राइटर, हमारे जो राइटर थे वो मेरठ के थे, और मैंने उनको कहा कि आप जो लहजा चाहते हैं ना, आप वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। तो वो मैंने ना सुनना शुरू किया, तो मैं वो सुनती थी। तो जब मैं स्क्रिप्ट फॉलो करती थी, मैंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी है अपनी। Oh my God. मतलब क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना वी वर देयर इन अमृतसर, एंड आई वाज डूइंग अप एंड डाउन बीच में, आल्सो डूइंग माय सीरियल, आल्सो डूइंग माय फिल्म, सो आई वाज मेंटली एंड फिजिकली वेरी एग्जॉस्टेड उस वक्त भी। तो जब आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं, तो उस वक्त अगर आप स्क्रिप्ट पढ़े ना, तो आप ग्रास्प नहीं कर पाते हैं कुछ। तो आई वांटेड टू बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी बिफोर आई रेड द स्क्रिप्ट, और उसके लिए मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला, क्योंकि अगर मुझे इसके लिए जाना था तो मुझे, इसका मतलब है अपने टीवी के एडवांस का काम कुछ करके फिर मैं जा सकती थी। सो दैट एडेड प्रेशर कि आप वो टीवी का काम कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास टाइम नहीं है स्क्रिप्ट पढ़ने का। फिर मैंने अनपैकिंग की, फिर पैकिंग की, तो बेसिकली देयर वाज नो टाइम। तो फ्लाइट में मैंने जब मुझे शेड्यूल मिला, मैंने शेड्यूल के हिसाब से, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इतनी कम प्रिपरेशन मैंने कभी। और मैं जब सेट पे गई तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, क्योंकि मैं वो सुनती रही जो चितरंजन सर ने लिखा था, जो हमारे राइटर हैं, और मेरी उनसे 1-2 बार बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैम मैं आपको लिख के भेज दूंगा, मैं आपको ना वॉइस नोट भेज दूंगा। तो मैं वही सुनती रहती थी। एंड थैंकफुली फर्स्ट डे जाके बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो I got the hang of it, and then I sat down to read the script and everything. And then when I came on the set, I was a little more prepared. And thankfully, क्योंकि हम उसी एरिया में शूट कर रहे थे, वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने उसी लहजे में बात करनी शुरू कर दी। तो क्योंकि मेरे लिए वो बोली, मुझे वो लहजा पिकअप करना था, मुझे वो लैंग्वेज, उनका तरीका, उनका डायलेक्ट, उनके रहन सहन का ढंग, वो सब कुछ पिकअप करना था, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था
क्योंकि मैंने कभी भी इतना रॉ रूरल कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया था। तो आई आइडियली वुड हैव लाइक्ड मोर तैयारी, बट आई थिंक फाइनली जो निकल के आया वो बाय गॉड्स वो तो ग्रेस। काबिल तारीफ है, सीरियसली। मैं तो अभी भी कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुक लिखने के लिए बोल देना इस पे, तो मैं कहूंगी मैंने शी डिड अ फैब जॉब, मतलब कोई नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर फ्रॉम मुंबई, यू लिविंग इन मुंबई, एंड मेरठ का कैरेक्टर लेना और इतना ब्यूटीफुली शो करना, मैम, वो बहुत ही अच्छा था, सीरियसली। Thank you. In fact, you know, when I came here and while we were doing the screening, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि अरे आपको तो डिफिकल्टी हुई नहीं, आप तो मेरठ की हैं, आपने तो लहजा पकड़ लिया एकदम। I said मैं कभी मेरठ नहीं गई हूँ, और लहजा तो दूर की बात, मैंने कभी उस भाषा में कभी बोल के भी नहीं देखा। So I mean, that was my, you know, वो मेरा इनाम था जब लोगों ने मुझे you know connect नहीं किया कि ये वही है जो अब। I was wearing a skirt that time, my hair was open and I was watching this screening. I was looking very different from Pushpa ji, which I played actually. So that thankfully was a very big, you know, मेरे अपने लिए वो एक बहुत बड़ी जीत थी मेरे अंदर, के डर को, you know, कि as an actor मैं पास हुई थी। And I really love that way the साड़ी you wear, के low waist पहना हुआ है and stomach दिख रहा है, and she doesn't care about the stomach. That is exactly the point, जहां मैंने mostly वो ladies को देखा कि उन्होंने यहाँ साड़ी खोसी होती थी और they were not bothered कि उनका पेट दिख रहा है। और नेचुरली मैं कोई 36 तो हूँ नहीं, अच्छी खासी तगड़ी हूँ, लेकिन टू गेट दैट नुएंस आई डिड दैट। कि यू नो जब वहां की लेडीज को मैं देखती थी, वो एक उनमें ना एक अलग किस्म की एक अल्हड़पन है जो हम जो यहाँ मिस करते हैं, जिस चीज को यहाँ की लेडीज आर वेरी वेल ग्रूम, वहां वो लोग एक बिंदी लगा ली, साड़ी ब्लाउज पहन लिया, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। तो आई वॉज ट्राइंग, मैं आई मीन जितनी मैं कोशिश, जितना मैं कर सकी कि मैं उस कैरेक्टर तक पहुंच सकूं। Even the way you said के थोड़ा सजा धजा करो, थोड़ा फेशियल फ्यूशियल कराया करो, उसमें फेशियल फ्यूशियल कराया करो, मैंने कहा मैम ने पूरा पकड़ा है पूरा अच्छे से। हाँ बिल्कुल, वो मैंने पूरा, मतलब वो शुरुआत का टाइम था, तो उस वक्त तक मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, तो मैंने तब तक आई वाज फॉलोइंग द लाइंस, तो मैंने एक्चुअली वो रिप्रोड्यूस किया जो मेरे राइटर ने लिखा, और जैसे उन्होंने मुझे वॉइस नोट पे भेजा मैंने वो रिप्रोड्यूस किया था। Don't you think that यहाँ पे जो ये ग्रास पावर है आपकी, तो ये जो है ये थिएटर से आई है? Because मुझे ऐसा लगता है कि आपको देख के लगता है कि ये थिएटर आर्टिस्ट है। Yes, बिल्कुल। ये मेरी जो बचपन की जो मेरी पढ़ाई है, जिसको हम कहते हैं ना, जो जिसको मैं पकड़ के बड़ी हुई, उस चीज को मैंने छोड़ा नहीं। जबकि मेरे आसपास भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं कभी एक एक्टर बनूंगी, बट अब आई पर्सनली फील वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो अगर आप एक्टर हैं तो आप उस चीज को पॉलिश कर सकते हैं, उस चीज को तराश सकते हैं। यू हैव टू बी बॉर्न एन एक्टर, लाइक यू आर बॉर्न अ पेंटर, यू आर बॉर्न अ सिंगर। आप अपनी वॉइस को आप यू नो सीख के आप उसको बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक्टर भी है। तो अब जैसे somebody has a flair for maths, वो आगे जाके मैथमेटिशियन बनता है, तो ऐसे ही एक्टर है। तो इनफैक्ट यह मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से डिविएट इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं मैम हमें एक्टिंग करनी है, हम कैसे करें। तो बहुत सारे लोग मुझे ये बात पूछते हैं, और कई बार ऑनेस्टली मैं यू नो उनकी जो अज्ञानता जिसको बोलते हैं ना, उसको लेके मैं कई बार परेशान बहुत हो जाती हूँ कि सबको ऑनेस्टली सबको ये लगता है कि अगर जिंदगी में कुछ और नहीं बने तो एक्टर तो बन ही जाएंगे, जबकि यू नो सबको ये लगता है कि यार पढ़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे।
वो नहीं करेंगे, भाग जाएंगे मुंबई, वहां जाके एक्टर बन जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। तो प्लीज, मुझे तो ये लगता है कि एक तो प्लीज आप ये बॉम्बे आने की बात, मुंबई आने की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक कि आपके अंदर इतना ज्यादा पैशन है कि आप बचपन से ही सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं और आपने उसके लिए काफी तैयारी की है, आपने अपने आप को, अपनी बॉडी पे काम किया है, अपनी वॉइस पे काम किया है, अपने आप पे काम, अपने हुनर को तराशा है, आपने थिएटर्स किए हुए हैं, आपने डांस सीखा है। तो वो डांस इज अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपने अपने तो honestly, I'm not against TikTok videos. मुझे everybody has a right to survive. Everybody has a right to give vent to their talent. तो ऐसा नहीं है कि मुझे TikTok वालों से कुछ गिला शिकवा है, पर मुझे लगता है कि उसमें फॉलोअर्स होने की वजह से लोगों में कई बार एक गलत फहमी हो जाती है कि हम एक्टर बन गए। तो इतने एक्टर्स जिन्होंने NSD में जो गए हैं, FTI में जो गए हैं, हर जगह जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। हम लोगों ने 20-20 साल दिए हुए हैं इस लाइन को, बचपन से पढ़ाई की है इस चीज को लेकर। तो कोई टिकटॉक वीडियोस, और एक बात ये है कि उसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती हमारी स्ट्रीम की भी है कि वो अपने वीडियोस की रेटिंग्स हाई करने के लिए टिकटॉक एक्टर्स को ले लेते हैं, क्योंकि उनको फाइनली वो सब, सो इट्स एक्चुअली अ विशियस सर्कल, आई अंडरस्टैंड। बट देन उस चीज को, टिकटॉक का क्या हुआ, बंद हो गया ना। इतने लोग जो आउट ऑफ वर्क हो गए, जिन्होंने इस चीज को अपनी जिंदगी बनाया हुआ था। तो ऐसी किसी चीज को आप अपनी जिंदगी बनाइए जो चीज परमानेंट है। उसके लिए देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सीरियसली, बिकॉज आई फील द सेम कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो थिएटर में इतना टाइम लेके आए हैं, जैसे नसीरुद्दीन 3-4 साल है, उनका तो मतलब मैच ही नहीं है। उनका तो पंकज कपूर है, नसीब भाई हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर कमांड, क्योंकि उन्होंने इतना रियाज किया हुआ है इस चीज को कि उनके नस नस में है। उनको नींद से उठा दो वो अपनी लाइन, क्योंकि दे हैव वर्कड सो मच। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड। और ये तो ऐसी फील्ड है जहां अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो कैमरा तो फट से पकड़ ले। एग्जैक्टली, ब्लूपर्स बहुत मिलते हैं। मेरे ब्लूपर्स का देखा ना, वो मैंने एक लाइव किया था और वहां मैंने बहुत सारे फंबल मारे थे, तो उन्होंने उसी का वो प्रोमो बना दिया। सैटरडे स्टारडम, अब मुझे याद है, इतने सारे फंबल मार के अब मुझे याद है सैटरडे स्टारडम। तो मैंने उनके लिए आई थिंक सैटरडे को लाइव किया था। हाँ, I was there, I was watching your live. मैं पूरी नजर रखी हूँ आपसे बहुत दिन से। Okay, so let's back to रसभरी मैम। So रसभरी जो है एक वेब सीरीज है, okay, जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा लोगों ने उसको इतना बना दिया कि लोगों ने कहा कि इसमें इतना ज्यादा सेक्सुअल है, ये है, वो है, ये, जो कि मुझे लगता है कि वो बाकी अगर मैं वेब सीरीज को देखूं तो उसमें भी अवेलेबल है, अगर बैलेंस में करूं तो, जो कि है। अगर मैं बात करूं साफ साफ पाताल लोक की, तो पाताल लोक में भी है, सीक्रेट गेम्स की, तो सीक्रेट गेम्स में भी है, मिर्जापुर में इतनी भयंकर है। तो आई वाज लाइक कि मतलब वजह क्या है। सो आई कॉल्ड यू दैट टाइम and you gave me the exact answer कि we know the reason and क्या क्या वजह है। So मैम, don't you think, how do you feel that time कि आपने एक वेब सीरीज इतनी अच्छी सबको लगी, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि प्रॉब्लम हमें वेब सीरीज से नहीं है, हमें प्रॉब्लम स्वरा भास्कर से है, बिकॉज शी टॉक शिट। मैंने कहा ओके फाइन नाउ।
तो व्हाट डू यू थिंक दैट टाइम कि रेटिंग्स खराब होने से एक्चुअली फर्क पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक? इनफैक्ट रसबरी को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा. इट वाज ट्रेंडिंग एट नंबर 1 फॉर 1 फुल मंथ. तो अगर स्वरा के सो कॉल्ड हेटर्स ने अगर IMDb रेटिंग कईयों ने तो आई मीन 1 से कम तो कोई रेटिंग होती नहीं है, उन्होंने 1 रेटिंग दी है, जिसके कारण रसबरी की रेटिंग जो है वो बहुत कम है. बट जिस तरह से उस चीज को प्रमोट किया गया था, मुझे लगता है प्रोमो में जितना सेक्सुअलिटी दिखाया था पूरे सीरियल में उतना ही था. इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं. तो लेकिन तो कई लोग क्यूरियोसिटी से उन्होंने ये देखा, कईयों ने इसलिए देखा कि लोगों ने इतनी कम रेटिंग क्यों दी है, कई लोगों ने थैंकफुली हम लोगों की वजह से देखा, कुछ लोगों ने. तो ओवरऑल फायदा तो ये है कि बहुत लोगों ने देखा. तो चाहे आप IMDb रेटिंग्स कम दें, yet the people did watch it and they called it soft porn, they called it alt Balaji. बहुत सारे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया जो सो कॉल्ड आई मीन स्वरा हेटर्स, जिन्होंने कहा कि आपने ऐसा काम क्यों किया उसके साथ का. अरे हम एक एक्टर हैं, हम सिर्फ अपना कैरेक्टर देखते हैं, हम वहां क्या कर रहे हैं. और मुझे तो अपना काम ठीक ठाक ही लगा, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट यार. आज आप मेरे साथ यहाँ बैठ के मुझे इंटरव्यू कर रही हैं उस रसभरी की वजह से. So शायद मैंने आई हैव मेड अ मार्क समवेयर, तो इसीलिए तो it did have a mixed response, but that is people known to you and me, but the public coincidentally found it very nice. It was a topic that was untouched. हर जगह आप किसी छोटे शहर में चले जाइए, हर स्टूडेंट का अपने टीचर पे क्रश होता है. और ये टॉपिक आपने इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज एक्सप्लोर्ड. तो लोगों को ये न्यूनेस लगी, लोगों ने देखा, लोगों ने उसको पसंद किया. सो बाय द एंड ऑफ इट रूरल एरियाज में, रूरल नहीं कहूंगी, लोकल एरियाज में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी लेडी होती है जो बदनाम होती है बिकॉज ऑफ ऐसी इमेज से कि शी इज वेरी सेक्सी एंड शी इज ब्यूटीफुल, कि इसके तो अफेयर्स होंगे. एग्जैक्टली. बिकॉज वो वेब सीरीज में भी मैं क्लियर करना चाहूंगी लोगों को कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि शी वाज एक्चुअल रसभरी और उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था कि नहीं, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ एंड तक. नहीं, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस रखा. हालांकि वो क्लियर किया था उन्होंने कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था उसको, क्योंकि लास्ट अगर किसी ने देखा हो तो उसमें था कि अरे इसको कैसे पता कि शालू मैडम क्या कहती हैं, तो उसको समझ में. लेकिन वो ऐसे रखा क्योंकि जब पार्ट 2 आएगा उसका तो एक क्यूरियोसिटी लेवल रहे लोगों में कि क्या सचमुच ऐसा था नहीं था, तो इसीलिए वो लूज सा एंड था. जो नंद है वो कॉलेज जाता है तो शी इज बैक विद अनदर पर्सनालिटी. So that is where the second series season is going to start. So are you planning for that? I don't know. It's just too soon actually. अभी तक लिखा नहीं हुआ है. अभी तक I don't know if whether I will be a part of it or not. उस वक्त dates भी होनी चाहिए, availability भी होनी चाहिए. Okay, so if you got the opportunity to this web series रसभरी, so आप कितना रेट करोगे इसको? Out of 10. 8. I knew it. I'll give 7.5. Yeah, actually 7.5 to 8. Because of that, maybe that language. Don't you think that language थोड़ा सा हो गया बच्चों के लिए? हाँ. है ना?
जिससे स्कूल वही है। स्टूडेंट पे फोकस किया गया तो थोड़ा सा हो गया। हालांकि देखा जाए तो क्योंकि ये सेल्यूलॉइड पे था तो इसलिए हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे, जबकि होता यही है मैम, रियलिटी यही है कि वी डोंट वांट टू रियलिटी फेस इट। रियलिटी ये है कि टू फेस इट। एंड ऐसा है कि अगर ऐसा कोई क्रश तो होगा, बट जिस तरह की बातें बॉयज में होती है या स्कूल में होती है, इवन इन गर्ल्स में होती है, वी डोंट नो दैट। अलग लेवल होता है। हाँ, हम अवेयर तो हैं लेकिन हम उस चीज से आंखें चुराना चाहते हैं। तो शायद तो उसी चीज को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक वो जो गार्ड्स होते हैं ना, वो कि यार ये ही सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। I know you are very busy, but have you seen दिल बेचारा film? Not yet, अभी नहीं देखी। Of course we are planning to see. Actually हमने आज देखना था, but अभी maybe some other time because tomorrow I'm shooting. तो actually my son has just left for the ship, so time नहीं मिला, नहीं तो अब तक देख चुकी होती। एक तो क्या है कि एक और एडेड उसमें ये है कि वो रांची की शूट है और मैं रांची की हूँ, जब वो शूट कर रहे थे या हाँ वो रांची में शूट की गई। तो वो तो चलो कोइंसिडेंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत है। उसमें यू नो द गर्ल प्लेड माय डॉटर इन, उसका जो फर्स्ट था वो तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट था, बट शी डिड हिंदी मीडियम विथ मी, संजना। हमने एक ही सीन किया था दोनों ने। I remember that tailor हाँ, so that was Sanjana. I know her since back then. So I have to watch it for mainly because of हमारे सुशांत सिंह राजपूत, but also for Sanjana. I need to watch it. And plus it's shot in Ranchi, so all the reasons for me to watch the film. I don't know how the film is going to be, but मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो सुशांत की लास्ट फिल्म है और इसके बाद सुशांत हम लोगों के लिए इमॉर्टल हो गए। Okay, ma'am. So I really want to ask you directly that don't you feel that ये हुआ है तो ये दोबारा ना हो? जो नेपोटिज्म पे अभी इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है, because you have faced so many things, many people like you have faced so many things. So ये जो चीज है ना, ये ऐसे वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग सामने आने चाहिए इसमें, जिसमें चीज दोबारा एग्जिस्ट ही ना करे। You know, ये सब कहना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ऐसा होता है यार, हर जगह ऐसा है। तो वाई सिंगल, ऑफ कोर्स वो बच्चा तो चला गया ना, बट आई डोंट नो व्हाट you know, nature is going to take what course, but I don't want to pass any judgment on anything, because कहीं ना कहीं on the other hand ये भी सही है कि इसी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे रोजी रोटी दी है। Exactly. Yeah. So I am so indebted to this film industry for giving me a पहचान। I mean, I gave up. I started a career when most women think of giving up a career at the age of 34. तो ये फिल्म इंडस्ट्री है ना जो आपको हर उम्र में with open arms वेलकम करती है। आज मुझे अगर इसने पहचान दी है, मैं तो किसी को भी यहाँ नहीं जानती थी। तो I have a lot to be grateful about। उसमें जो सुशांत के साथ हुआ, वो यहाँ दर्द होता है उसको सोच के, बट आई थिंक वो I am nobody to comment because I don't know too much about it. Okay, so let's rapid fire round. You ready? Yes. Okay, so your all-time favorite film of yours?
One basically. मेरी One. वन मनमर्जिया। Okay. And other one? मतलब basically किसी और की? किसी और की मेरे ना बड़े पुराने पुराने वो होते हैं बड़े, ये लोग उसको समझेंगे भी नहीं। I am here. मैंने 2 बदल तक फिल्में देखी, बहुत सारी फिल्में देखी हैं मैम। तो थ्री इडियट्स That's new one. and हाँ, and there's this Hollywood film called Life is Beautiful, and I'm in love with that film. So these are 2-3 films. Then मुझे पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बहुत अच्छी लगती थी, मुझे गुरुदत्त की फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। तो लोगों को लगेगा पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, तो वहाँ की फिल्मों की बात ना करते हुए अगर इन टाइम्स की बात करें तो मुझे रॉक स्टार बहुत अच्छी लगती है, मुझे थ्री इडियट्स बहुत अच्छी लगती है। एंड आई एम अ डाई हार्ड मेरिल स्ट्रीप फैन एक्चुअली, मुझे मेरिल स्ट्रीप बहुत पसंद है, तो मैं उनकी हर फिल्म देखती हूँ, मुझे लगता है व्हाट अ वुमन, व्हाट एन एक्टर। तो आई विल मेंशन ऑल हर फिल्म, जितनी भी उनकी मेरिल स्ट्रीप की फिल्में हैं, मैं एक तो गिनवा ही नहीं सकती, तो उनकी फिल्में। देन that's it, I think. Yeah. Okay, so what myth you don't want to break? Myth I don't want to break, or I want to break. You don't क्या want to पूछे? break. कि about myself, किसके बारे में myth? कि मेरे बारे में, कि नीलू कोहली is very cool, जबकि सबको पता है नीलू कोहली not cool at all. I am just like any other. No. Yeah, but people think I'm cool and I'm okay with it. You laugh from the heart. हाँ, तो मैं वही, हाँ, ये तो दिल से आता है। Because I saw that video na, when you were laughing. Oh, what was the damn show? I was like, okay. And वो तो मैम मुझे याद रहेगी, वो मेमोरी मेरे साथ रहेगी. The way you send me those pictures. When you decide. So you know how uncool I am, what a scatterbrain I am. I was imagining myself in the Kilol brand. मैंने कहा मेकअप पहनूंगी यार। That was the funniest moment. वो सब मुझे समझ में आया when he said कि मैम I don't wear this, so I was like you don't have to wear it. Oh shit. Then I realized कि ये तो किसी और को भेजना था, कहीं और चला गया ये। Okay. What one myth about acting? That acting is an easy job. Acting हर किसी के बाएं हाथ का खेल है। ये लोग बहुत सोचते हैं। एंड में अब जब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखती हूँ लोगों के, इसमें लिखा होता है एक्टर। मैंने कहा सब एक्टर हैं आज के टाइम में। ओके, एक्टर बनना बहुत आसान है, एक्टर बनना बहुत आसान है, लेकिन एज एन एक्टर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। True, that's true. So what was the best vacation you ever had? I think it was my last trip to Chicago, which was about 2 years back. Okay, so your favorite topic to talk? Films. Okay. You love gossiping? No. I know. I used to. वो टाइम भी था जब मुझे gossiping करना अच्छा लगता था, लेकिन after growing as an individual, अब सुन लेती हूँ. I don't pass a judgment very soon. अब वो उम्र के साथ साथ वो एक ठहराव आ गया. अब मुझे कुछ शॉक नहीं करता जिंदगी में. I don't get shocked at all. And दूसरा, I don't pass a judgment very soon. That's a good quality, I think. Because I am very judgmental. I don't judge at all. I used to. आपकी उम्र में शायद जॉब कर रही हो वो बहुत नॉर्मल है यार, लेकिन उम्र और एक्सपीरियंस और आपका जो एक
जो काम हम 100 लोगों के साथ रोज काम करते हैं, तो 100 लोगों के साथ आपका पाला रोज पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है, एक ठहराव ले आता है आपकी जिंदगी में। आई वांट टू गो टू टर्की। मुझे टर्की बहुत मुझे वहां का एक वो उसके बारे में जो इजिप्ट, टर्की, इन सब चीजों को ना, द pharaohs, द ममीज एंड क्लियोपैट्रा, और वो सब चीजें ना बड़ी रोमांटिक और बड़ी रोमांटिसाइज करती हूँ मैं उनको। तो जो पिक्चर मेरे दिमाग में बनी हुई है अबाउट दीज प्लेसेस, मैं जाके देखना चाहती हूँ कि ये वो जगह एक्चुअली वैसी हैं जो मैंने अपने दिमाग में जो बने हुए हैं। सो आई एम वेरी वेरी कीन ऑन गोइंग टू दीज प्लेसेस। Okay, so your favorite book? After I did Raspberry, I realized that there's this book called Sybil, which is on multiple personalities. So that was a book that really influenced me. और हमारे टाइम में एटलस श्रग्ड जो पढ़ता था उसे कहते थे कि ये बहुत ही पहुंची हुई चीज है। तो मुझे एटलस श्रग्ड बहुत पसंद थी। Also, there's this very normal book called In Conversation with God. जो जब मैंने पढ़ी थी उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई थी, मतलब क्या होता है, तो वो मैंने दोबारा पढ़ी अब, तो that I felt is very very beautiful book. Your favorite actor? एक्चुअली पता है, ये मुझे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और मैंने बहुत बार यही बोला कि मेरी एक इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि मैं आई कांट रियली, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट इज मेरिल स्ट्रीप। लाइक आई टोल्ड यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ मेरिल स्ट्रीप। तो इंडियन एक्टर्स में बहुत है, लेकिन वो सब उस टाइम की थी, शबाना जी, स्मिता पाटिल, वो लीग के लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, काजोल। तो आई हैव समथिंग फॉर डस्की स्किन, मुझे ना ये डस्की स्किन बहुत पसंद है मुझे, तो मुझे सब, हाँ, तो मुझे लगता है कि दे लुक वेरी नाइस। I got it. So tell us something about your awkward moments on the set. नहीं, ऐसे अभी फिलहाल तो कोई लास्ट में तो कोई awkward हुआ नहीं, बिकॉज अब सब पहचानते हैं तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी दे ही देते हैं, तो awkward होता नहीं है कुछ। हाँ, awkward मेरी तरफ से ये होता है कि कई बार मैं किसी को पहचानने में गलती कर देती हूँ, और मैं तो एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आई हैव मिस्टेकन देम टू बी अनदर पर्सन, और मैंने वहां की बातें शुरू कर दी एंड देन फाइनली टेल मी कि मैम मैं वो नहीं हूँ। तो वो एक वो उप्स मोमेंट हो जाता है कि ओ अच्छा आप वो नहीं, वो तब आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो। तो एक दो बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। Okay, so if you got an opportunity of spreading 3 messages in the world, so what will be आपके वो 3 messages क्या होंगे? मेरा जो बेसिक मैसेज मैं बहुत लोगों के साथ ये जो शेयर करती हूँ कि शेयरिंग योर फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी आजादी मनाइए, लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज बी अवेयर। दूसरा मैं ये कहूंगी अवेयरनेस, कि अवेयर रहिए कि आप कहाँ हैं, किस वक्त हैं, किसके साथ हैं, तो जिंदगी में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज जो मैं हर किसी से कहती हूँ वो है एजुकेशन, कि प्लीज भी, मतलब पढ़ाई को कभी भी ये मत समझिएगा कि ये वेस्ट जाएगी, क्योंकि इट इज ऑलवेज एडिंग अप टू योर पर्सनालिटी, ऑलवेज एडिंग अप टू योर व्हाट यू आर एज अ पर्सन। तो पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, अवेयर रहिए अपनी सराउंडिंग्स की, क्योंकि जब आप अवेयर रहते हैं, जब आपके आंख कान खुले होते हैं, तो आपके लिए वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है, उससे आप सीखते हैं। और तीसरा, जब आप अपनी फ्रीडम को विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप रहते हैं, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कि
आई एम स्टेइंग इन अ कम्युनिटी, तो मुझे जब इन लोगों के साथ एज अ कम्युनिटी इन अ सोशल एनवायरनमेंट रहना है, तो उस चीज को मैं मिसयूज ना करूं। ओके मैम, सो एक लाइन में आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई एम सो you're a ऑब्सेस्ड। very no why you're a very effervescent person, आप एक बहुत ही you're a lovely person, not only look beautiful, you are beautiful, और जितना मैं आपको जान पाई हूँ और मुझ जैसों को झेला आपने मेरी idiosyncrasies को तो नो, आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच, एंड खूब फूलो फलो, जिंदगी में खूब तरक्की करो। Yeah, ma'am. Thank you so much. Thank you for coming back. Basically, आप दोबारा आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। You are here. And बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, and बहुत दिन से आपसे बात हो रही है, and that funny moments वो बहुत दिन से चल रहा है। So I really love you. You're a very true person. Actually, you are seriously. You're sitting here and you're not faking. So that's the way I really love you. Love about you. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, bye. Bye everybody. Bye. Bye guys. Take care, ma'am. Okay, bye bye.